Yes, good morning, plus one class. So we have started the chapter ledger. Ledger means the posting of the journal entry into the different accounts. So here I am going to solve one more practical problem through which it would be more clear to you. That is the first practical problem from your chapter, that is the unsolved practical problem. So first of all I have made the journal entries. So journal entries से आपको clear हो जाएगा कि हमें लेक्चर में पोस्टिंग कैसे करनी है. Fine. So let's discuss about the journal entries. Take out your page number 9.25. It's on page number 9.25. The first unsolved problem of ledger chapter. That is chapter number 9. Fine. So first entry is purchase goods from Rita. So here on credit. So obviously purchases are always debited, that you people know. So entry would be purchases account debited to Rita account. Then the second entry is cash paid to Rita, and here our cash is going out to cash account and Rita is debited since she is receiving your cash. Then further is sold goods to Rohit on credit. Again these are your sales and sales are your revenue. It would be credited here. So entry would be Rohit account debited to sales account. And fourth one is on 8th April we have cash received from Rohit. So cash received from Rohit means आपने पैसा receive करा. Cash is coming in. So cash account is debited here to Rohit because Rohit is the giver of the cash. Then again the next entry is purchase goods from Rita. So I have passed the entry purchases account debited to Rita account. And finally Rita को फिर cash pay करा है. So Rita account debited to cash. These are the repeating because we are have to post the entries into the respective accounts here. Then last is second last is sold goods to Rohit again. So this means Rohit account debited to sales. And finally we have received the cash from Rohit. So entry is cash is coming in, cash account debited, and Rohit is the giver to Rohit account. So finally कितने accounts हैं जिसको आपने format करना है? Here I have written the name of the accounts. First is purchase account, second is sales account, then cash account, then Rohit account, and last is Rita account. So in 5 accounts में से आप कोई भी पहले बना सकते हो. It doesn't matter कि आपने ये पहले बनाना है, ये पहले बनाना. So try to understand what is the format of posting the journal entry into the respective account. So if I have taken the purchases account, अगर मैंने purchases account बनाना है तो मैंने purchases वाली सारी entries की posting करनी है by date. So I have first entry is purchases, then other here we have purchases. So it means in purchases account we will post 2 entries, that is of 3rd April and of 12th April. Fine. So here this is the format of purchases account. First of all, in the center you will write the name of the account. So what does the name means? जो account आप बनाने जा रहे हो उसका नाम बेटा आपने center में लिखना है. Then since it is a double posting, so one side is debit, you will present as DR, and other side is credit, you will represent as CR. So here debit and credit words are important. Fine. So here I will draw a T. T means the half portion is the left side for the debit one and the other portion is for the credit one. So what is the format here? So here first you will write the date. Lack of space, so this is somehow congested. So next is particulars. Particulars means the detail. Then ledger folio and amount rupees. Is it clear? So 4 columns are on the one side and 4 same columns would be on the second side. So in the same way I will write here date, particulars, ledger folio and amount. Clear? So this I am repeating again. The format of ledger is very important. How to post the entry is one of the major technical tasks. This is all new for you. So try to understand the logic.
कि आप एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग अपने अकाउंट्स में बेटा कैसे करते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? सो हियर पर्टिकुलर्स डेबिट डेट और अमाउंट डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे कैसे। फर्स्ट एंट्री इज ऑन 3rd अप्रैल। अब बेटा हमने पोस्टिंग कैसे करनी है, द एंट्री इज परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड टू रीता अकाउंट। So first of all you have to check in which account you are going to post the journal entry. So I have to post the entry in the purchases account. So finally जिस अकाउंट में आपने पोस्ट करना है, आपने उस एंट्री को देखना है कि वो अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट। मतलब if I am posting the journal entry into purchases account, so purchases account मेरी एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट। So it is all clear from this entry, purchases are always debited, so it means purchases account मेरा क्या हो रहा है, debit. So debit या credit check करना, it would decide whether you have to write on debit side on the credit side or the credit side. So since purchases are debited, it means I will write on the debit side. So again I am repeating, जिस अकाउंट में आपने बेटा एंट्री पोस्ट करनी है, उस अकाउंट को आपने अपनी एंट्री में देखना है कि वो वर्ड आपकी डेबिट साइड पे लिखा है या क्रेडिट साइड पे लिखा है। सो परचेजेस अकाउंट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड का मतलब कि आपने डेबिट साइड पे लिखना है इन द परचेजेस अकाउंट। बट लिखना क्या है, द अदर एस्पेक्ट, बिकॉज इट इज द डबल एंट्री सिस्टम। इफ आई एम राइटिंग द डेबिट एस्पेक्ट, सो मैंने डेबिट साइड पे लिखना है, बट मैंने लिखना क्या है, द क्रेडिट एस्पेक्ट, मतलब I will write to Rita account. So to Rita account मैं लिखूंगी डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये लाइंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, आपने इसे ऐसे एरो नहीं बनाने। So first of all I will put the date, that is on 3rd April. So here I am going to write 3rd April 2020. Date can be written on any form, right? So to Rita account, same आपने डेबिट लिख देना है to Rita account, ठीक है, टू रीता अकाउंट, ठीक है। और जब आप अकाउंट वर्ड लिखते हो, सो ए एंड सी मस्ट बी कैपिटल्स, ठीक है। स्मॉल ए या स्मॉल सी नहीं किसी बच्चे ने डालना, ना ही जर्नल में ना ही लेजर। सो हियर वी हैव 20,000 रुपीज, 20,000। इज इट क्लियर? सो फाइनली व्हाट वी हैव डन, परचेजेस अकाउंट में हमने पोस्ट करा है टू रीता अकाउंट। बेटे अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग द परचेजेस अकाउंट, सो परचेजेस वर्ड मेरा इधर कहीं नहीं आएगा। अगर मैंने टू परचेजेस या क्रेडिट साइड पे परचेज लिख दिया, इट मींस दैट इज माय रॉन्ग पोस्टिंग, बिकॉज अकाउंट जो सा आपने बनाना है उसकी रिवर्स पोस्टिंग आपने करनी है, मतलब यू विल रिकॉर्ड द अदर एस्पेक्ट। क्लियर? सो फाइनली वन मोर एंट्री वी हैव ऑन 12th April. So 12th April की एंट्री भी क्या हो रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। It means purchases are here debited, so I will write to the debit side. So what is in the credit side? Again we have given credit side to Rita account, मतलब एंट्री में क्या लिखा हुआ है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रीता अकाउंट। So to Rita मतलब the credit aspect is to Rita, so you will write here to रीता अकाउंट अगेन, ठीक है जी। दिस इज बाय डेट ऑफ 12th April। अब आपने दोबारा भी रीता क्यों लिखा? ऑब्वियसली देखो बेटे लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीता से गुड्स खरीदी ऑन 3rd April, सो ऑब्वियसली 3rd April को एंट्री पास होएगी। देन अगेन एक पर्सन से आप गुड्स खरीदते हो ऑन 12th April, तो ऑब्वियसली सेकेंड डेट की भी आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और 12th April को कितने हमने गुड्स परचेज करे हैं, 12,000। सो 12,000, इज इट क्लियर? तो ये नहीं आपने करना है एक बारी में रीता लिखे प्लस करके पैसे, बिकॉज दीज आर द टू ट्रांजैक्शन एट डिफरेंट डेट्स। सो ऑब्वियसली हमने अपनी डेट की पोस्टिंग अपनी जगह पे करनी है। सो दैट इज व्हाई आई हैव posted two aspect here. First is 3rd April to Rita, then 12th April to Rita. So by this हमारी जितनी भी एंट्री परचेजेस की थी, मतलब बाय चांस दो ही थी, वो हमने पोस्ट कर ली। Now this account is over. So क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि एक अकाउंट की कितनी एंट्रीज हैं। So I have posted my 2 entries. I have done the posting.
अकाउंट हैज टू बी क्लोज्ड। मतलब जब आपने सारी एंट्रीज क्वेश्चन की कर ली तब आपने उस अकाउंट को कर देना है टोटल, मतलब दैट अकाउंट मस्ट बी बैलेंस्ड। उसको हम कहते हैं कि दैट अकाउंट इज बैलेंस्ड नाउ। अब बैलेंस कैसे करना है ध्यान से देखना। दिस इज द डेबिट साइड अमाउंट, मैंने इधर लाइन लगा दी जैसे प्लस माइनस की सम करते हैं ना, 1 2 3। ये जो लास्ट लाइन है ऐसे आपने लगानी है नैरो सी, मतलब फर्स्ट लाइन नीचे सेकेंड लाइन, उसके नीचे छोटी सी थर्ड लाइन, मतलब नैरो वन। बिकॉज इसका मतलब होता है कि अकाउंट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड नाउ। और जिसमें ये तीसरी लाइन नहीं लगाएगा दैट वुड बी डिडक्शन ऑफ मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों साइड्स में हमने कर ली लाइंस ड्रॉ। फिर आपने देखना है कि डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी फिगर्स बड़ी है, मतलब विच इज द ग्रेटर कॉलम। सो आई हैव ऑन द डेबिट साइड 20 plus 12 32,000 और क्रेडिट साइड में आई हैव नॉट हैव एनी फिगर्स। सो ऑब्वियसली जिस साइड पे मेरी फिगर्स है, मतलब द डेबिट साइड, आई हैव द डेबिट साइड डॉगर। सो डेबिट साइड पे मेरी कितनी फिगर्स आ रही है 32 और यहाँ पे मेरी आ रही है nil। सो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली 32। तो दोनों फिगर्स में से अगर आपकी एक मिसिंग है तो इट मींस एक का ही टोटल आपने दोनों साइड पे लिखना है। एंड वन मोर थिंग इज दैट जो आपने लाइंस ड्रॉ करनी है दोनों पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक मैंने इधर कर दी एक मैंने नीचे कर दी, ये वाली। सो इट मस्ट बी ऑन द पैरेलल। आप बुक में भी चाहे देख लेना। सो अकाउंट का मतलब यही है कि जो पैरेलल जा रहे हैं। सो बैलेंस भी आपने पैरेलल करना है। सो हियर आई वुड डेबिट टोटल, आई वुड राइट टोटल 32,000 एंड 32, ये 32,000 है बेटा, ठीक है। 32,000 and 32,000 I have written on the both side। मतलब कि जिस अकाउंट में आ रहे थे दूसरे मैंने लिख दिए। अब आप चेक करो कि यहाँ पे तो 32,000 बन रहा है ना, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं है। सो यहाँ पे हमने खुद 32,000 डालना है। सो दैट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। सो सिंपली अकाउंट बनाना आपका काम नहीं है, अकाउंट को बैलेंस करके उसको क्लोज करना, दैट इज द टोटल वर्क ऑफ लेजर। सो हियर मैंने सारी एंट्री की पोस्टिंग करने के बाद चेक कर लिया कि कोई और एंट्री नहीं रहती। 20 plus 12 32 और 32 ही फिगर थी, मैंने यहाँ लिख दी। अब इधर कैसे लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है। अब आपके अकॉर्डिंगली कॉलम का टोटल आ रहा है 32,000। सो 32,000 मैं लिख दूंगी इधर। अब हो गए बराबर, ठीक है। 32 ही आपकी डेबिट साइड पे आ रहा है, 32 ही हमने खुद लिख दिया, वो भी टोटल आ गया, तो दोनों बैलेंस हो गया। अब जो 32,000 फिगर मैंने खुद लिखी है, इसके सामने ब्लैंक है, यहाँ पे भी कुछ लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले डेट में आपने कौन सा लगाना है, द मंथ विच इज रनिंग, अप्रैल मंथ इज गोइंग ऑन, इसकी लास्ट डेट 30th अप्रैल यू विल पोस्ट है। सो 30th अप्रैल आपकी लास्ट डेट ऑफ द मंथ की आपने अपने अमाउंट के सामने पोस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे लिखना क्या है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये वो फिगर है जो आपके अकाउंट को बैलेंस कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैलेंसिंग फिगर। सो इसको आप ऐसे लिखोगे बाय BY बाय, डेबिट साइड पे कुछ लिखना है तो 2 करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे कुछ लिखना है तो बाय करके लिखते हैं, ठीक है जी। सो बाय BAL बैलेंस C/D, ऐसे लिखा मैंने, बाय बैलेंस C/D। सो C/D मतलब दिस बैलेंस इज कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब कि ये आपका इस मंथ का टोटल आ गया है, इसको आपने अगले मंथ लेके जाना है। सो दिस इज कॉल्ड द टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस सॉरी कैरिड डाउन, ठीक है जी। सो C/D इज द, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, BAL बैलेंस FIG फिगर, बैलेंसिंग फिगर की शॉर्ट फॉर्म है बैलेंसिंग फिगर। So this is all about one account. In the same way, we have 4 accounts left with us. तो हमने 4 accounts मतलब sales account, cash account, Rohit account, Rita account ना, in the same way. Fine. So next is, इसके बाद आपने क्या करना है, कैरी डाउन के बाद एक छोटा सा काम और रह गया, जहाँ पे आपने टोटल करा, मतलब अप्रैल हैज गॉन। अब अप्रैल
फर्स्ट में और लिख देना है टू बैलेंस B/D। ठीक है, तो C/D means the carried down figure, the closing figure, and B/D means the brought down figure, means the opening figure, the new month's figure। So बेटा लॉजिक ये होता है कि 22,000 की आपने परचेजेस करी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अब सॉरी 32,000 की। सो 32,000 की अगर आपने परचेजेस कर ली है तो आपकी टोटल परचेज होगी 32,000, तो वो इस मंथ में फिनिश नहीं हो जाएंगी, ऐसे ही एक्यूमुलेट होता जाएगा अगले मंथ तक। ऐसे ही करके आपको पूरे साल की सेल्स काउंट कर देंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो बाय दिस वी मेड आवर मंथली अकाउंट्स। सो मंथली अकाउंट की जो बैलेंसिंग करके हमारे पास कौन सी फिगर आती है, ईयरली फिगर, कि पूरे साल में हमने कितनी परचेजेस करी हैं, वो आ जाएगी हमारे लास्ट पूरे साल की टोटल में। ठीक है जी। सो हर मंथ को हम कैरी डाउन करते हैं, फिर ब्रॉड डाउन करते हैं, कैरी डाउन करते हैं, फिर ब्रॉड डाउन करते हैं। सो यहाँ पे आपको कितने मंथ्स नहीं आएंगे, ओनली वन मंथ वन अकाउंट पर्टिकुलर वुड बी देयर कि आपने उस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। सो यू मस्ट नो द लॉजिक कि आपको कैसे हर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। सो फर्स्ट मे को मैंने यहाँ पे लिख दिया 32,000। अब यहाँ पे आपने 32 टोटल वाला नहीं लिखना, कैरी डाउन लिखना। बाय चांस दीज आर सेम, बट कुछ अकाउंट्स में ये सेम नहीं होएगा। 32,000 हमने दिस फिगर इज टू बी ब्रॉट डाउन। सो कैरी डाउन का मतलब होता है इसको अगले मंथ कैरी कर लो, और ब्रॉट डाउन मतलब ये पिछले मंथ से ब्रॉट डाउन करिए लेके आए। दैट इज व्हाई द वर्ड्स ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन आर यूज्ड। फाइन। सो इफ यू हैव एनी डाउट वी विल क्लियर इन आवर Zoom class.